start with a new exercise, that is exercise 7.2 of class 10th maths chapter coordinate geometry. So question number 1 is find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3. So basically हमें given है कि एक line है which is joining two points, let the points be A and B with coordinates -1, 7 and 4, -3. तो हमें वो point के coordinates निकालने हैं जो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है 2:3. बेसिकली हम सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन के को डिवाइड करने वाले, किसी भी रेशो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज इफ अ लाइन हैज़ 2 points x1 y1 are the coordinates of one point and x2 y2 are the coordinates of other, and it is divided by a point in the ratio m:n, then the coordinates of P can be found using section formula m into x2 plus n into x1 upon m plus n, and for y coordinate m into y2 plus n into y1 upon m plus n. So we will use the same formula. Let the required point be P which divides line AB in 2:3 ratio. So coordinates of P will be this into this and this into m into x2, 2 into 4 plus 3 into -1 upon m plus n means ratio का sum. Now 2 into -3 plus 3 into 7 for the y coordinate, again 2 plus 3, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5, 2 3s are 6, 3 7s are 21 upon 5, 5 upon 5 which is plus minus 5 cancel out 5, 5 3 is 15. So the coordinates of P are 1:3. Hence the coordinates of P are 1, 3. Now moving to next question. Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of line segment joining this. Trisection मतलब bisection होता है 2 equal parts में कट करना. That is known as bisection या bisects word हम यूज़ करते हैं. Now what is trisection? Trisection means 3 equal parts में कट करना. Trisection means 3 equal parts. Bisection means 2 equal parts. Trisection means 3 equal parts. So let us suppose we have a line segment AB such that A has 4, 1, -1, B is -2, -3. Now अगर इसे trisect करना है so we need 2 equal points. Let the points be P and Q. अब इस P और Q 2 points ने इस लाइन को 3 equal parts में कट कर दिया यानी trisect कर दिया. So let the points P and Q trisect the line AB as shown in figure. Now अब अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल का मतलब ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, मतलब 1:1:1. इक्वल का मतलब तीनों का रेशो सेम है 1:1:1. लेकिन अगर मैं इस पार्ट में से सिर्फ फ़िलहाल इसको देखूं, इसी लाइन ए बी में से अगर हम सिर्फ Q को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये रेशो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे. Q को भूल जाएं, अगर हम Q को भूल जाएं तो इधर 1 हो जाएगा और इधर 1 + 1 2, यानी P के लिए ये रेशो क्या हो जाएगा 1:2. और सिमिलरली अगर हम थोड़ी देर के लिए P को भूल जाएं तो 1:1 यानी 2 और Q के लिए 1, तो यानी ये रेशो क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि इधर ज़्यादा पार्ट है यानी 2 पार्ट्स हैं और इधर 1, अगेन इधर 2 पार्ट्स है यहाँ पर 1. अब हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. हमने पहले रेशो निकाला और अब हम इनके क्या फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स -2, -3. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. दिस इज टू दिस एंड दिस इज टू दिस, तो -2 into 1 एंड +2 into 4 upon 1 + 2, 1 into -3 +2 into -1 upon 1 + 2.
So minus 2, 4 2 8, 2 plus 1 3, minus 3, minus 2 upon 3, 6 upon 3 and minus 5 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So it is 2 comma minus 5 upon 3. So coordinates of P are 2 comma minus 5 upon 3. Similarly for coordinates of Q, so ये तो P के coordinates होगा. So coordinates of Q क्या हो जाएंगे हमारे पास? Again this by this, this by this. 2 into minus 2 plus 1 into 4 upon 2 plus 1. Similarly 2 into minus 3, 1 into minus 1 plus 1 into minus 1 upon 2 plus 1. Now minus 4 plus 4 upon 3, minus 6 and minus 1 upon 3. So it is 0 upon 3. 4 minus 4 is 0, minus 7 upon 3. Now 0 upon anything is 0. So coordinates of Q are this. So coordinates of P and Q are respectively 2 comma minus 5 by 3 and 0 comma minus 7 upon 3. Let's read question number 3. To conduct sport day activities in your rectangular shaped school around ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Okay, 1 meter का distance है. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. And Niharika runs 1/4 the distance of AD. निहारिका ने कितना रन किया है? AD का 1/4. Okay. And second line and post a green flag. प्रीति run 1/5 of the AD and in the 8th line. प्रीति जो है वो 8th line में है, निहारिका जो है वो 2nd line में है. और प्रीति ने जो कितना डिस्टेंस रन किया है? 1/5. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि निहारिका और प्रीति के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तभी हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी. तो एज यू कैन सी इन द फिगर, अगर हम कहें फिगर में ध्यान से देखें तो निहारिका के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो निहारिका 2nd लाइन में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2. और उसका डिस्टेंस एडी पे कितना कवर किया है उसने? एडी हमारे पास है 100 फ्लावर्स इन 1 लाइन. 100 मीटर है क्योंकि 100 फ्लावर पॉट है. उन्होंने कहा है कि निहारिका ने कितना कवर किया है? निहारिका ने एज यू कैन सी इन द फिगर 1/4 कवर किया है. तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है? 25 मीटर. सो यानी वाई पे कितना डिस्टेंस है उसका? 25. सिमिलरली अगर हम प्रीति की बात करें तो प्रीति की लोकेशन क्या है? प्रीति 8th लाइन में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया और प्रीति ने 1/5 कवर करा है एडी का, तो यानी कितना हो गया? 20. अब मेरे पास निहारिका और प्रीति दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमसे पहले पूछा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीति वो क्या होगा? तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. यही होता है डिस्टेंस. तो हमने कहा ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 8 माइनस 2, y2 माइनस y1 20 माइनस 25, विच इज़ 6 स्क्वायर एंड माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज़ 36 प्लस 25 विच इज़ √61. यानी इतने मीटर आ गया दोनों के बीच के फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस. अब इन्होंने कहा है कि रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दैट. तो फॉर रश्मि टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags. तो अगर बिल्कुल बिटवीन में लगाना है तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है इसमें निहारिका को अगर हम ए से डिनोट कर रहे हैं, निहारिका की पोजीशन को, निहारिका के फ्लैग को विच इज़ 2,25, और बी पोजीशन से हम प्रीति के फ्लैग को शो कर रहे हैं जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20. तो रश्मि को बिल्कुल इनके एग्जैक्टली बीच में लाना है. अब अगर एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट में, यानी तो रश्मि यानी आर क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा. एग्जैक्टली मिडिल का मतलब 1:1 रेशो, 1:1 रेशो का मतलब मिड पॉइंट. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर हम कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 विच इज़ 10/2 45/2. तो इट इज़ 5, 45/2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि क्या हो जाएंगे हमारे पास? 5, और इसे पॉइंट में करेंगे तो 22.5, क्योंकि रश्मि कहाँ है? एग्जैक्टली मिडिल में है. क्योंकि रश्मि हमारे पास कहाँ है? एग्जैक्टली मिडिल में. तो रश्मि अगर निहारिका और प्रीति के बिल्कुल मिडिल में फ्लैग लगा रही है तो मिडिल का मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ध्यान से समझेंगे, फाइंड द रेशियो, इस बार हमसे रेशियो पूछा है और एक लाइन सेगमेंट दी है जॉइनिंग दिस एंड दिस, यानी ए अगर -3, 10 है और बी हमारे पास 6, -8 है। फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय दिस। इन्हें डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। तो इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स पहले से ही गिवन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने थे, रेशियो गिवन होता था। इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशियो फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो लेट करना होता है, वी ऑलवेज टेक k:1। हमेशा रेशियो क्या लेंगे, k:1। सो लेट point P, which is -1,6, divides line AB in ratio k:1। हमने कहा P जो है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, a:1। दैट इज AP अपॉन PB जो है हमारे पास वो कितना है, k:1। नाउ अगर हमें k:1 रेशो पता है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पता भी हैं। हम डायरेक्टली निकालें तो कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला k:6 1 × -3 अपॉन k+1। ऐसे ही k × -8 यानी -8k एंड 1 × 10 यानी 10 अपॉन k+1। अब ये हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाले हैं, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P तो ऑलरेडी गिवन है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो कि हमने तो निकाले हैं क्या, 6k प्लस माइनस 6k -3 अपॉन k+1 एंड -8k + 10 अपॉन k+1। और ये ऑलरेडी गिवन है कितने, -1,6। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज़ -1,6। सो अब हमारे पास इस हिसाब से x कोऑर्डिनेट -1 होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट ही। अब दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है k की वैल्यू के लिए, किसी भी एक को कंपेयर कर लो। सो दिस इम्प्लाइज x कोऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दिस, और y इसके। तो आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट कंपेयर कर दो k की वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ x कोऑर्डिनेट को कहा है कि ये कितना आना चाहिए, -1। ये वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आनी कितनी चाहिए, -1। और ये डिवाइड में है तो उधर किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 6k -3 इक्वल्स टू -k -1, 6k + k, -3 गोज़ टू अदर साइड +3। सो इट इज़ 7k इक्वल्स टू 2। देयरफॉर k कितना आ जाएगा, 7, 2/7। यानी जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/7। हैंस जो हमने AP अपॉन PB रेशो माना था वो क्या माना था, k/1। k कितना है, 2/7। दैट इज़ 2/7 रेशो 1, और ये 7 ऊपर ही चला जाए तो 2:7। 2/7 क्या रेशो आ जाएगा, 2/7। AP/PB हमने क्या माना था, देखो AP/PB माना था हमने k:1, राइट। तो k की प्लेस पर 2/7 और 1 की प्लेस पर 1। अब ये 7 उधर चला जाए तो 2:7। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x axis. इस बार इस लाइन सेगमेंट AB को किसने डिवाइड किया है, x एक्सिस ने। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर x एक्सिस पर है कोई पॉइंट, x एक्सिस किसी चीज़ को डिवाइड कर रही है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर वो पॉइंट x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है यानी वो x पे ही होगा, उसका y तो क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई भी लाइन किससे डिवाइड हो रही है, x एक्सिस पे, तो यानी उसका x कोऑर्डिनेट होगा और y क्या हो जाएगा, 0। और यही अगर कोई लाइन y एक्सिस से डिवाइड होगी तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और उसका क्या ही होगा, सिर्फ y। ये याद रखना है। तो इफ़ एनी लाइन इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस तो हमें उसका x कोऑर्डिनेट तो लेना है, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड करेगी यानी उसका y तो है ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं और रेशो। अब अगेन रेशो की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k:1। लेट पॉइंट P given on x axis and its coordinates are, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स कितने मान लिए, x, 0। एंड AP/PB का रेशो कितना माना है, अगेन k:1। तो अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सेक्शन फॉर्मूला से कैसे आएंगे, k:2 - 4 यानी -4k, 1:5 which is -5 upon k+1, k:5 5k, 1:5 -5, k:-4 1:1, सॉरी +1, 1:1। नाउ ये हमारे हिसाब से कोऑर्डिनेट्स आनी चाहिए P के, लेकिन ऑलरेडी P के कोऑर्डिनेट्स क्या बोले हैं, x, 0। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये हमारे हैं -4k k+1 और 5k -5 अपॉन k+1, ये होंगे किसके इक्वल, x, 0 के।
अब इस केस में ये चीज़ x के इक्वल, ये चीज़ 0 के इक्वल। x से तो हम इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि x कोई वैल्यू तो है नहीं, अननोन है। तो अननोन से कंपेयर करने की बजाय हम इसका कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे इस बार, y, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या है, 0। तो जिसकी वैल्यू पता है उसी से कंपेयर करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दोनों वैल्यूज़ पता थी तो हम किसी से भी कंपेयर कर सकते थे, इसमें सिर्फ हमें y की पता है। दिस व्हेन गोज टू अदर साइड विल बिकम 0, k इक्वल्स टू 5/5 विच इज़ 1, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 1। देयरफॉर p डिवाइड्स AB इन 1:1 रेशो। किस रेशो में डिवाइड करेगा, k रेशो 1 था यानी 1:1, k की वैल्यू पुट कर दी। अब इन्होंने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने थे। देखो y कोऑर्डिनेट तो p का 0 है, पर x अगर हमें फाइंड करना है तो ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें पता है क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमारे पास है -4k + 1/k+1, 5k - 5/k+1, यही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यही थे p के कोऑर्डिनेट्स। पर अब तो k की वैल्यू पता है, तो k की वैल्यू क्या है, 1, तो k की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे हम। -4 × 1 + 1/1+1, 5 × 1 - 5/1+1, so it is -4 + 1/2, 5 - 5 is 0.2, so it is -3/2, 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। और ये तो हमें पता ही था कि पॉइंट बाय x एक्सिस है, x एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या होना था, y कोऑर्डिनेट क्या होना था, 0, आना ही y कोऑर्डिनेट 0 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है एक ही जो ये ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में लेने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसके वर्टिसेस इसी ऑर्डर में लेने हैं, ABCD। फाइंड x एंड y। अब पैरेललोग्राम के केस में हमें एक चीज़ हमेशा पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी इस पॉइंट पर ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये हमें पता है। तो बस हम इसी का यूज़ करेंगे। अगर एक बात बताएं कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि P जो है वो मिड पॉइंट है इसी का, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है। सिमिलरली यहाँ से भी ये बोला जा सकता है P क्या है इस लाइन का, मिड पॉइंट, बस उसी का यूज़ करेंगे। तो हमने कहा सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिस इम्प्लाइज AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, कि AC और BD एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, क्यों, क्योंकि वी नो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए ये भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इम्प्लाइज मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। P ही तो मिड पॉइंट है दोनों का, तो P के कोऑर्डिनेट चाहे मैं AC से निकालूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, या BD से, दोनों से कैसे आनी चाहिए, दोनों से सेम आनी चाहिए। अब किसी भी लाइन के मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। मेरे पास एक लाइन है PQ और M इसका मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट अगर ये है यानी इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। दोनों x कोऑर्डिनेट्स का सम किया डिवाइड बाय 2, दोनों y कोऑर्डिनेट्स का सम किया। तो सिमिलरली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि मिड पॉइंट तो सेम है दोनों का, वो है P। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे AC से निकालने हैं मिड पॉइंट लगा के, तो x1 + x2/2 विच इज़ x + 1/2 एंड y1 + y2 यानी 2 + 6/2। और यहाँ से निकालने हैं अगेन x क्या है 3 और 4, तो 3 + 4/2 5 + y/2। अब x वाले को x से कंपेयर कर दे, y वाले को y से, तो दिस इम्प्लाइज x + 1/2 इज इक्वल्स टू 4 + 3 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 7 - 1 विच इज़ 6। सिमिलरली y को y से कंपेयर करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 6 + 2 8/2, 5 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 - 5 इज इक्वल्स टू y विच इज़ 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी हैव डन इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B। ध्यान से देखेंगे, हमें कहा एक सर्कल और उसका सेंटर भी है और AB क्या है डायमीटर, जिसमें B की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1/4 और सेंटर के भी दिए, यानी इसके भी दिए हैं 2, -3। हमें A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो A के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x, y। Let the coordinates be x, y. So let the required coordinates of A be x, y.
अब ये पता है कि ओ क्या है, सेंटर, और ए बी है डायमीटर। अब अगर ए बी डायमीटर है तो ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, यानी ओ क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट। तो हमने कहा सिंस ओ इज द सेंटर ऑफ ए बी, देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की तो रेडियस है दोनों। अब अगर दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है तो ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के। यानी मैं ये बोल सकती हूँ दिस इम्प्लाइज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और अभी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ अगर मुझे फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ओ, तो कैसे होंगे, वो निकलेंगे x1 + x2 यानी x + 1/2 y + 4/2, यही होंगे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ऑलरेडी पता है सेंटर के, क्या है 2, -3। हमारे हिसाब से क्या है x + 1/2, y + 4/2, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 2, -3। तो अब बस सिंपल है, x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y की वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। x + 1 = 4, 2 × 2 4, प्लस के 1 उधर जाएंगे तो -1 यानी x = 3। अगेन 2 3 = 6, प्लस के 4 goes to other side become -4 minus plus, so -10. So x = 3 and y = -10. Now moving to next question. So the next question, that is question number 8. If A and B are this and this respectively, find the coordinates of P such that AP = 3/7 of AB. Again हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB, in which A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, -4 और एक पॉइंट है P जो इस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है। P इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो हमें गिवन है कि P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB सच दैट, इस तरह से कि जो AP है वो 3/7 ऑफ AB है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब भी हम यहाँ रेशो लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है AP/PB, लेकिन ये AP/PB नहीं है तो AB है। क्या मैं AB ऐसे लिख सकती हूँ, ये 7 जो है ये इधर चला जाए तो 7AP = 3AB, लेकिन मुझे AP/AB रेशो नहीं चाहिए, मुझे AP/PB चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन में PB कैसे लेकर आऊँ, क्या मैं AB को AP + PB नहीं लिख सकती, AB को AP + PB। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास पूरा रेशो आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे 3 के मल्टीप्लाई में 3 का ब्रैकेट ओपन होगा तो 3AP + 3PB। नाउ AP ऑन वन साइड, 7AP - 3AP, दिस 3AP goes to अदर साइड तो नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ 7 - 3 = 4AP। अब मुझे रेशो चाहिए किसका, AP = PB, AP = PB। तो मैंने कहा ये इसके नीचे आ जाए, अल्फ़ाबेट के नीचे, तो AP एज इट इज़, PB इधर आ गया और नंबर के नीचे तो 3/4। तो AP के नीचे PB और 3 के नीचे 4, तो AP = PB रेशो कितना आ गया अब हमारे पास 3:4। तो इसमें पहले हमें एक एक्स्ट्रा काम ये करना था कि हमें एक पार्ट का पूरी लाइन के साथ रेशो दिया था, पर हमें पार्ट्स का रेशो चाहिए, तो हमने AB को ब्रेक करके लिखा और AP और PB का रेशो निकाल दिया 3:4। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, दिस इंटू दिस। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, 3 × 2 + 4 × -2, 3 + 4, अगेन 3 × -4, 4 + +4 × -2, 3 + 4, 3 2 = 6, 4 2 = 8/7, -12 -8/7, -2/7, -20/7. Hence the coordinates of P are -2/7 and -20/7. Now moving to next question, that is question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment into 4 equal parts. हमने बाइसेक्शन यानी 2 इक्वल पार्ट्स भी पढ़ लिया है, ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स भी पढ़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में कट करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, P, Q और ये B पॉइंट में यहाँ ले लेते हैं, B पॉइंट यहाँ है, तो ये हो गया हमारा R। तो अब हमारे पास इस लाइन को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, दिस दिस दिस। तो ध्यान से देखेंगे दिस एंड दिस, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो सबका रेशो कितना है 1:1:1। सबका रेशो क्या है 1:1:1। लेकिन अब मुझे PQR के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग निकालने हैं, तो फॉर द टाइमिंग
फॉर द टाइमिंग अगर मैंने ए को लिया है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। अगर हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ध्यान से देखेंगे ए पी का पार्ट कितना है, ए पी कितना पार्ट है, सेक्शन है 1, और ये सेक्शन कितना है 1 + 1 + 1 यानी 3। तो पी के लिए रेशो क्या हो जाएगा डिवाइड करने के लिए 1:3। सिमिलरली देखते हैं A:R। अब हम आर क्यू की बात करते हैं, तो इधर कितना है 1:1 यानी 2, इधर कितना है 1 और 1 2, यानी ये तो इक्वल रेशो हो गया। क्यू के लिए क्या हो गया, ये क्यू के लिए तो इक्वल रेशो हो गया, 1:1 हो गया। इक्वल का मतलब क्यू क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। क्यू किसकी तरह हो जाएगा, इस लाइन के मिड पॉइंट की तरह, क्योंकि इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सेम लाइन ए बी, और अब इसके लिए हम आर की वैल्यू के लिए देखते हैं रेशो। आर है ये बी के क्लोज पॉइंट, तो हमने आर को बी के क्लोज बनाया, और इतना पार्ट है 1 और इतना प्रीवियस पार्ट, पी और क्यू को भूल जाओ, 1 + 1 + 1 यानी 3। तो आर के लिए रेशो क्या हो जाएगा 3:1। अब हमें तीनों रेशोज़ पता हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करेंगे सबसे पहले, दिस इज टू दिस एंड दिस इज टू दिस, यानी 1 × 2 + 3 × -2 अपॉन 1 + 3, 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3। तो ये हो जाएगा 2 + 3 × 6 4, 8 + 3 × 6 + 4 विच इज़ -4/4, 14/4। कैंसिल आउट करेंगे 2 के टेबल से, सो इट इज़ -1 and 7/2। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब बात करते हैं पॉइंट क्यू की। तो क्यू बिल्कुल इस लाइन के मिडिल में है, इक्वल ये, तो मिड पॉइंट हो गया। तो हमने कहा क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट की तरह एक्ट करेगा क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो सेंटर में है। अब अगर क्यू सेंटर में है, दोनों जगह से इक्वली है, तो क्यू की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के लिए मिड पॉइंट x1 + x2/2, y1 + y2/2 which is 0/2, 10/2. 0 upon anything is 0 and 2 1s are 2, 2 5s are 10. So it is 0,5. Now again for the point R we can use section formula. So coordinates of R, R के लिए क्या यूज़ करेंगे, section। 3 × 2 3 × 2 1 × -2 upon 3 + 1, again 3 × this 8 + 1 × 2 upon 3 + 1. So 3 to the 6, 3 8s are 24 + 2/4, 4/4, 26/4, which is 1 2 2s are 4 and 13. So coordinates of Q are 1 R R, R के coordinates क्या हो जाएंगे 1,13. For Q the coordinates are 0,5 and for P -1,7/2. So these are the required coordinates 13/2. Now moving to the next question, find the area of a rhombus if the vertices are this taken in order। अगेन एक rhombus की बात कर रहे हैं हमारे पास, और उसके vertices इसी ऑर्डर में लेने हैं। सो लेट अस सपोज वी हैव अ rhombus ABCD, और एक ही ऑर्डर में लेने हैं, तो A 3,0, B 4,5, C -1,4 एंड D इज़ -2, -1। हमें एरिया बताना है। अब rhombus के एरिया का फॉर्मूला अगर हमें पता हो तो ½ × D1 × D2 होता है। तो इसके डायगनल्स चाहिए, तो हमने कहा हमें AC डायगनल भी चाहिए और BD डायगनल भी। अब अगर हम ध्यान से देखें AC डायगनल और BD डायगनल, वी नो एरिया ऑफ और rhombus क्या होता है। हमने कहा एरिया ऑफ rhombus होता है ½ × D1 × D2, यानी ½ × डायगनल 1 AC कह दो इंटू डायगनल 2 विच इज़ BD। अब AC और BD की वैल्यू कैसे निकालें, तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं AC कैसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AC डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, x2 - x1 यानी -1 - 3, y2 - y1 का स्क्वायर विच इज़ -4² + 4², 16 + 16 √32। नाउ BD अगेन x2 - x1, 4 - -2 is 4 + 2, 5 - 1 is 5 - + 1, 6² which is 36 + 36 which is √72। अब हम इसे और फैक्टराइज करें 32 के फैक्टर, तो हम 32 के फैक्टर्स कर सकते हैं, ताकि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करें हम उतना ईजियर हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 2 का पेयर, एक और 2 का पेयर, तो 2 के पेयर्स बन गए और एक अनपेयर्ड रह गया, सो वो अंदर ही रह जाएगा 4√2। सिमिलरली 72 के फैक्टर्स करेंगे, सो वी हैव 1 पेयर ऑफ 3 एंड 1 पेयर ऑफ 2, तो इनका पेयर बन गया तो ये आउट और एक अनपेयर्ड रह जाएगा, यानी 6√2। नाउ ½ × AC, AC की वैल्यू क्या है 4√2,
BD is 6 root 2. Now 2 1 2, 2 2 4, 6 2 12, and root 2 ये हमें पता है. 2 1 2, 2 2 4, 6 2 12, root 2 2, so 24 units. एरिया है तो 24 स्क्वायर यूनिट्स. जब भी एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स, और अगर सिंपली डिस्टेंस होता तो ओनली यूनिट्स. So we have completed this chapter.